Hello everyone. Today I have discussed about the most important and vital topic principles in organizing the support system. It is related with the unit 4 of paper education studies in एमएड सेमेस्टर 1. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एमएड सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर 3 जो कि एजुकेशन स्टडीज है, इसका यूनिट 4 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत सपोर्ट सिस्टम यानी शिक्षा के समर्थन प्रणाली के आयोजन के सिद्धांत क्या क्या हैं और वह सिद्धांत कैसे काम करता है, इससे संबंधित मैं बात कर रहा हूँ। अगर शिक्षा के समर्थन प्रणाली की या सहायक प्रणाली की बात करूँ तो इसके पूर्व के वीडियो में मैंने ये स्पष्ट किया था कि सपोर्ट सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे जो कि किसी न किसी समस्या कभी उन्हें शिक्षा के दौरान आती हैं तो कैसे उन्हें मजबूती के तौर पर ऊपर उठाया जाए, उन्हें सपोर्ट कैसे प्रदान किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विद्यालय जो कि सपोर्ट का सबसे प्रथम स्थान है, उसके माता पिता, प्रिंसिपल, शिक्षक, इन सभी चीज़ों की मैंने चर्चा की थी। आज मैं उसका सिद्धांत क्या है उसे स्पष्ट कर दूँ। जब सिद्धांत की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये चीज़ आता है कि जो चीज़ काम की जा रही है छात्रों के हित के लिए, उसका स्पष्ट एक आधार, एक सिद्धांत होना चाहिए। सिद्धांत इन द सेंस जिसमें एक निर्देशन की बात हो, संगठन की बात हो, या साथ ही साथ असेसमेंट मूल्यांकन की बात हो, या सांस्कृतिक व्यवहार की बात हो, सांस्कृतिक विरासत की बात हो। कैसे इन सभी चीज़ों को एक एक करके सैद्धांतिक तौर पर काम किया जाए इन सभी के आधार पर, जिससे कि ये बच्चों को या बच्चे के विकास के लिए फ़ायदेमंद हो, ये चीज़ें स्पष्ट हैं। मैं अब इन सभी चीज़ों को एक एक करके विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now, first describe in English principles in organizing the support systems. Following principles such as clear focus and high expectations, a rigorous instructional program, a personalized learning environment, instructional leadership, school based professional development, and a culture of professional collaboration, meaningful assessment of student learning, partnerships with organizations, parent and caregiver engagement, student voice and participation, integration of technology into teaching and learning. Number 1. Clear focus and high expectation for staff and students are defining features of an effective school. Clear focus and high expectation of the foundation on which the school's culture of collaboration and inquiry rest. A rigorous instructional program provides equitable opportunity to learn and enables every student to master challenging content skills and learning strategy, meet student needs and address achievements gap. Now number third, a personalized learning environment, that is most important because it is characterized by knowledge of each student's learning style, social and family conditions, strength, aspirations and needs. Number 4, instructional leadership by the principal and other school leaders is characterized by a school-wide focus on students' achievements, support for improving and enhancing school culture, teaching and learning. Now number 5, school-based professional development and a culture of professional collaboration, that is the most important principles because it improves instruction and student achievement and cultivate adult learning communities within the school. Effective professional learning communities feature continuous reflection and assessment of student work and teacher practice. Number 6, meaningful assessment of student learning occurs continuously and gives students a variety of opportunity to demonstrate that they meet content and performance standard and can apply their learning. Partnership with organization strengthen the ability of the school to serve
the academic and developmental needs of its students. Effective partnership help keep the school developmental needs of its student. Effective partnerships help keep the school in touch with the wider community and professional network, enable it to support students. Parent and caregiver engagement is an ongoing process that integrates families into the life of the school in a variety of ways, in which parents and caregivers have voice and power to shape all components of the school. Number 9. Student voice and participation ensure that students have significant opportunities to collaborate with school staff, exercise leadership, and make choices and decisions. Students have clear areas of input and participation regarding their classroom, school campus, and community also. Number 10. Integration of technology into teaching and learning allows the all students to assess and analyze information, communicate ideas, and express themselves creatively. Teachers have adequate equipment and professional development to enable them to implement technology enhanced lessons. Now, all things described in Hindi. शिक्षा की समर्थन प्रणाली को व्यवस्थित करने में सिद्धांत। समर्थन प्रणालियों के आयोजन में सिद्धांत जो हैं वह निम्नलिखित है। नंबर 1, कर्मचारियों और छात्रों के लिए स्पष्ट ध्यान और उच्च उम्मीदें, एक कठोर निर्देशात्मक कार्यक्रम, एक व्यक्तिगत शिक्षा का वातावरण, निर्देशात्मक नेतृत्व, स्कूल आधारित व्यावसायिक विकास और व्यावसायिक सहयोग की संस्कृति, छात्र के सीखने का सार्थक मूल्यांकन, संगठनों के साथ भागीदारी, माता पिता और देखभाल में भागीदार, छात्र की आवाज़ और भागीदारी, शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी का एकीकरण। नंबर 1, कर्मचारियों और छात्रों के लिए स्पष्ट ध्यान और उच्च उम्मीदें। स्कूल एक प्रभावी सुविधाओं को प्रभावित करने के साथ अपने सदस्यों को लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हर छात्र सफलता सुनिश्चित हो, हर छात्र की सफलता सुनिश्चित हो। स्पष्ट फोकस यानी स्पष्ट जो जोर देना हुआ, उच्च अपेक्षाएं, विद्यालय की संस्कृति और सहयोग जिस पर पूछताछ की नींव है। एक कठोर निर्देशात्मक कार्यक्रम प्रत्येक छात्र को चुनौतीपूर्ण सामग्री, कौशल और सीखने की रणनीतियों में महारत हासिल करने के लिए सीखने और सक्षम बनाने के लिए समान अवसर प्रदान करता है। विद्यालय यानी स्कूल समुदाय है पाठ्यक्रम को सूचित करने के लिए मूल्यांकन, प्रतिबिंब और नवाचार की गतिशील प्रक्रिया में लगे हुए हैं। विकास और निर्देशात्मक रणनीति छात्रों की जरूरतों को पूरा करना और उपलब्धि अंतराल को संबोधित करना है। एक व्यक्तिगत शिक्षा का वातावरण प्रत्येक छात्र की शैली, सामाजिक, पारिवारिक और पारिस्थितिक ताकत, आकांक्षाएं और जरूरतें, सीखने के ज्ञान की विशेषता है। प्रत्येक छात्र कम से कम एक छात्र की आवश्यकता, सहायता का समन्वय, उच्च शिक्षा रोजगार करने में मदद करता है। निर्देशात्मक नेतृत्व प्रिंसिपल यानी प्राचार्य और अन्य विद्यालय नेताओं द्वारा निर्देशात्मक नेतृत्व की विशेषता, छात्र उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करना, विद्यालय की संस्कृति को सुधारने और बढ़ाने के लिए समर्थन, शिक्षण और एक विद्यालय छात्र है और स्कूल के यानी विद्यालय के नेताओं, शिक्षकों, माता पिता, छात्रों, भागीदारों के बीच सहयोग समुदाय में प्रभाव से सीख रहा है। विद्यालय आधारित व्यावसायिक विकास और व्यावसायिक सहयोग की संस्कृति में सुधार, निर्देश और छात्र की उपलब्धि और विद्यालय के भीतर व्यस्त शिक्षण समुदाय में निरंतर प्रतिबिंब और शिक्षण अभ्यास का मूल्यांकन होता है। छात्र के सीखने का सार्थक मूल्यांकन लगातार होता है और छात्रों को विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है, प्रदर्शित करने के अवसर की वे सामग्री और प्रदर्शन मानकों को पूरा करते हैं और अपने आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक छात्र की ज़रूरतों की पहचान करने और सुधार करने के लिए नैदानिक उपकरणों के रूप में आकलन का उपयोग करते हैं। संगठनों के साथ भागीदारी, अपने छात्रों की विकास संबंधी ज़रूरतें, छात्रों के परिवार या देखभाल करने वालों के साथ संबंध बनाना और शैक्षणिक सेवा करने के लिए स्कूल की क्षमता को मजबूत करती है। प्रभावी भागीदार स्कूल को व्यापक समुदाय और पेशेवर के संपर्क में रखने में मदद करती है, जो इसकी स्थिरता बढ़ाए और जो छात्र की सफलता का समर्थन करते हैं। माता पिता और देखभाल में भागीदार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो विभिन्न तरीकों से स्कूल परिवारों को जीवन में एकीकृत करती है। परिणाम एक साझेदारी है
जो माता पिता की मांग से प्रेरित करता है, दैट मीन्स जो आउटपुट निकल कर आता है, और इसके लिए इसके द्वारा खेती की जाती है, यानी दैट मीन्स प्रोसीड करते हैं काम को। खेती करने का तात्पर्य ये हुआ कि उसी के आधार पर काम करने की शैली को सीखते हैं। विद्यालय के घटक समुदाय जैसे जिसमें कि माता पिता और देखभाल करने वालों के पास आवाज़ और एक शक्ति है, यानी ताकत उनका आधार है। स्कूल मानता है कि युवा सफलता प्राप्त करने के लिए भागीदार बने। छात्र के परिवार का कोई भी व्यक्ति भरोसा कर सकता है उन पर। छात्र एक आवाज़ और भागीदारी सुनिश्चित करती है कि छात्रों को सहयोग करने के महत्वपूर्ण अवसर हैं। स्कूल के कर्मचारियों के साथ नेतृत्व का अभ्यास करें और विकल्प और निर्णय लें। परिसर और समुदाय छात्रों के स्पष्ट क्षेत्र हैं। इनपुट और भागीदारी और उनके कक्षाओं स्कूल के संबंध में निर्णयों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी का एकीकरण सभी छात्रों को उपयोग और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। जानकारी विचारों को संप्रेषित करना और रचनात्मक रूप से खुद को व्यक्त करना। शिक्षकों के पास उपकरण और पेशेवर विकास उन्हें प्रौद्योगिकी संवर्धित पाठों को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है। छात्र प्रिंट, दृश्य और ऑडियो सामग्री सहित विभिन्न सूचना स्रोतों को सूचना साक्षरता और कौशल का स्पष्ट शिक्षण के माध्यम से नेविगेट करना सीखते हैं, यानी खोजना सीखते हैं। इस प्रकार से ये 10 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, स्पष्ट किया। ऊपर वर्णित जो भी मैंने विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत की चर्चा की, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि शिक्षा की जो समर्थन प्रणाली है, अगर इन सिद्धांतों के अनुसार काम करें तो निश्चित ही छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। साथ ही साथ रचनात्मक गतिविधियों में वो भाग ले पाएंगे और आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंस की जो प्रवृत्ति है वह उनमें विकसित होगी। अब इन सभी में जितने भी चीज़ों की चर्चा की गई, उन सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी ये चीज़ें सफल हो सकती हैं, अन्यथा ये चीज़ें सफल नहीं हो सकती हैं। ऊपर जो ऑन द बेसिस ऑफ एबव पॉइंट indicates that all principle that is relevant and most important and also set the direction of the children. If any types of slackness यानी किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार की कमी छात्रों के हित के लिए नहीं है, अतः आवश्यकता इस चीज़ की है कि कैसे ये सपोर्ट सिस्टम यानी शिक्षा एक समर्थन प्रणाली का काम करे, अब बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो इसी के साथ इस जो सिद्धांत हैं मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। इसके सभी पॉइंट को आप नोट करें और इस वीडियो को देखें, पसंद करें, शेयर करें। अगले क्लास में शिक्षा के समर्थन प्रणाली के मार्गदर्शन के बारे में विस्तार से बात करूँगा। और इससे संबंधित कोई भी अगर आपको कमेंट्स हो तो यूट्यूब के कमेंट्स वाले बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित आप देखें और कमेंट जो मेंशन हो, क्वेश्चन अगर उसमें आ रहा है तो क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, मैं उससे स्पष्ट करूँगा। धन्यवाद।